Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3 subject code BP602T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor at Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, we are going to discuss today about the monoclonal antibodies. So, let us start with the introduction of the antibodies. In the previous lecture in the immunopharmacology, we have explored about the antigens and the antibodies. So, just recapitulating the definition of antibodies. So, an antibody is the protein, because I already mentioned you that it is having a proteinaceous nature, which is used by the immune system to identify and neutralize the foreign objects like the bacteria, virus, fungus or any toxin or any environmental allergens. So, if you can say the each antibody have some the recognition site which is required for binding with the antigen, and this will lead to the specificity of the antibodies towards make them an excellent tool for the detection and the quantification of the pathogens. Okay. So, with an in vitro assay, you can say the antibodies can be used to precipitate soluble antigens such they agglutinize those antigens, they opsonize them and finally kill those antigens, either it is bacteria, virus, fungus or anything, okay, and with the assistance of this assistance of complement systems like the macrophages or the lymphocytes. Okay. So, moving towards the history of monoclonal antibody. So, monoclonal antibody, because as the name suggests, it having a one clone, okay, mono matlab single and clone. So, it has a only single clone which is derived from the single clone of the antibody. So, the first scientist who worked in the field of this monoclonal antibody is the Paul Ehrlich. It is already having a very leading contribution in the field of medicine. So, Paul Ehrlich is in the beginning of 20th century coined the term magic bullets and postulates that if a compound could be made that selective target as a disease causing organism, then a toxin for that organism could be delivered along with that selectivity. ठीक है, it means if we are targeting, हमने कोई एक compound isolate किया जिसकी selectivity है particular किसी microbes के साथ, ठीक है, पर्टिकुलर साइट पे माइक्रोब के, तो हम उसको यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करने के लिए, मारने के लिए. सो इन 1970 the B cell cancer multiple myeloma was known, and it was understood that these cancerous B cell are produced by the single type of antibody, and these particular single type of antibody is known as the paraprotein. Now, in 1975 the two eminent scientists, the George J. F. Kohler and Cesar Milstein, they provided the most outstanding proof of the clonal selection theory by introducing the fusion of normal and the malignant cell, which is later known as the hybridoma technology. Okay. And for this they received the Nobel Prize in 1984. In 1986, the first monoclonal antibodies was licensed by the FDA, and it is having the API Muromonab CD3, and the brand name was the Orthoconol OKT3, which was approved for use in the preventing the rejection of किडनी ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है ना, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हमने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर द आइडेंटिकल इम्यूनोग्लोबुलिन. इट मीन्स कि ये है तो एंटीबॉडी, ठीक है ना, तो यानी कि ये है तो प्रोटीन ही. हाँ, सो इट इज अ व्हाट आइडेंटिकल इम्यूनोग्लोबुलिन्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम अ सिंगल बी सेल क्लोन. सो जनरली the antibodies, especially the monoclonal antibodies, are derived from a single B cell, ठीक है, not T cell. We are talking about the B cell, and B cell were derived from where, bone marrows, ठीक है ना, वहाँ से derive होते हैं. So, it is a single derivation of B cell clone, and these have a single site of binding with the antigen. ठीक है ना, एक single site होता है एंटीजन पे जिसको हम एपिटोप कहते हैं, और उसी के साथ ये क्या करता है, बाइंड करता है. ठीक है ना. नाउ derivation from a single B cell clone and subsequent targeting of a single epitope is the major difference which lead to the matlab you can say differentiate the monoclonal antibodies from the
polyclonal antibodies. So polyclonal antibodies, you can say they have a different multiple epitopes for binding and they are derived from the different cell lines. ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. Now what are the characteristics feature of the monoclonal antibodies? So monoclonal antibodies, which is in short is known as MAB. ठीक है, आप इसको हम जगह MAB यूज करेंगे. That means the we are talking about the monoclonal antibody. So they are single type of antibodies which are identical and directed against the specific epitope. ठीक है, ओके. अब epitope कहाँ, एंटीजन का epitope है, ठीक है ना, जहाँ पर ये बाइंड करेंगी. ओके, एंड नाउ दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल सेल बी सेल. ठीक है, hybridoma cell line is formed by the fusion of this B cell along with the myeloma cell. यानी कि आपको हाइब्रिडोमा, हाइब्रिड का मतलब होता है किसी दो चीज का मिक्सचर करना. ठीक है ना, तो हमने यहाँ क्या ले लिया, एक क्लोन लिया जो बी सेल से डेराइव था, प्लस हमने उसके अंदर एक माइलोमा सेल्स के साथ उसको फ्यूज कर दिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो चीजों का हाइब्रिड हो गया. दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ सम माइलोमा सेल सिंथेसाइज सिंगल मैप वेयर सम आर derived from the multiple clones. So this is a table which is depicting about the difference between the polyclonal as well as the monoclonal antibody. So starting with the production, it is derived from the many B cell clones, whereas the monoclonal antibody is derived from only one single cell clone. ठीक है ना, bind with the multiple epitopes, यहाँ पर ये multiple epitopes के साथ bind करेगा, but monoclonal antibodies जो हैं they only bind with the single epitope. Now अगर हम बात करें तो दे हैव अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडी क्लासेस. अब यहाँ पर IgM भी होगा, B भी होगा, G भी होगा, E भी होगा. ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही एंटीबॉडी होगा, चाहे जो भी हो. ठीक है, AG बाइंडिंग साइट की अगर हम बात करें तो अब मल्टीपल एंटीबॉडीज हैं, मल्टीपल एपिटोप्स हैं, तो दोनों को बाइंड करने के बीच में जो इम्यूनोजेनिसिटी है, जो सेलेक्टिविटी है, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी. एंड दिस विल लीड टू द पोटेंशियल cross reactivity, whereas it is low in the monoclonal antibody, and this makes the monoclonal antibody are more successful molecules compared to the polyclonal antibody. So what are the advantages of MAB? अब क्यों MAB यूज करें, अब हम उसके एडवांटेजेस की जब बात कर रहे हैं तो एक्सेप्ट एक्सपेंसिवनेस, बिकॉज इसको बनाना थोड़ा सा महंगा है. ठीक है, बट नॉट टू मच कंपेयर टू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स. जो हम केमिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सस्ता ही है, उतना महंगा भी नहीं है. ठीक है ना, ओके. इसका एक एडवांटेज और भी है कि ये साइड इफेक्ट्स जो हैं वो उनको थोड़ा सा मिनिमाइज करता है कंपेयर टू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स. दे कैन हैव अ सेलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स बाइंडिंग. ठीक है ना, एंड दे कैन ट्रीट द वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस. ठीक है, अब जब हम टारगेटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से वी हैव अ डिफरेंट यू कैन से टारगेट्स एंड वी कैन ट्रीट अ मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीजेज और द डिसऑर्डर्स. सो if there is some positives, so there are some negatives also. So what are the disadvantages of the monoclonal antibodies? एक तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है, दूसरा इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, नॉट कंपेयर टू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बट यस स्टिल इट हैज़ सम एक्सपेंसिवनेस. ठीक है ना. नाउ दे यू कैन से कि इनका एक सेलेक्टिविटी है, स्पेसिफिसिटी है टुवर्ड्स पर्टिकुलर एंटीजन और पर्टिकुलर एपिटॉप के साथ. ठीक है, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे एंटीजन्स होते हैं या ऐसे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन एंटीजन में भी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और द प्रोटीन. तो अगर कोई ऐसा एंटीजन है जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का है तो उसके साथ बाइंडिंग करने में हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो फेल हो जाएगा. तो ये एक इसका ड्रॉबैक है. ठीक है, अब क्योंकि आप सेल्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको एकदम एसेप्टिक कंडीशंस में काम करना पड़ेगा, एकदम स्टरलाइज कंडीशन में काम करना होगा. अगर आपने नहीं किया तो देयर में बी चांस दैट द सेल विल गेट कंटामिनेटेड एंड द एंटीबॉडीज विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड और दे प्रोड्यूस्ड, हाँ, तो दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव. ठीक है ना. नाउ सिस्टम इज ओनली वेल डेवलप्ड फॉर द लिमिटेड एनिमल्स, नॉट फॉर द अदर एनिमल्स. अब आप अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना रहे हो तो आप सारे एनिमल्स को यूज़ नहीं कर सकते हो. वी हैव सम सेलेक्टिव, जैसे हम म्यूरिन यूज़ करते हैं, हॉर्स यूज़ कर सकते हैं, रैबिट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना, या माउस यूज़ कर सकते हैं. अब ये नहीं कि हम कैट भी यूज़ कर लें, मंकी भी यूज़ कर लें, बिकॉज उनके साथ थोड़ा सा इशू होगा इम्यूनोजेनिसिटी का. ठीक है. नाउ मोर देन 99% सेल इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर नॉट सर्वाइव्ड. ठीक है ना, जब हम इसको फ्यूज कर रहे होते हैं, किसको, बी सेल को और माइलोमा सेल्स को. ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% सेल्स जो होते हैं इस फ्यूजन में वो
फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। 1% सेल्स आर रिजल्टेड, ठीक है ना, और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है थोड़ा सा वो महंगा हो जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज अ डायग्राम विच इज इंडिकेटिंग हाउ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रिपेयर्ड। सो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट बताता हूँ क्योंकि अगले स्लाइड्स पे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके पूरे एक एक स्टेप्स को, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक माउस लिया और उसके अंदर हमने एंटीजन को क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। इंजेक्ट करने की वजह से उस पर्टिकुलर माउस के अंदर उसके अगेंस्ट में क्या बनेंगे, एंटीबॉडीज बनेंगे, और वो जो एंटीबॉडीज होंगे वो उसके स्प्लीन से हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद हमने उस पर्टिकुलर सेल को आइडेंटिफाई कर लिया जो एंटीबॉडी को मतलब बना रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हमने उसको फ्यूज कर दिया किसके साथ, एक माइलोमा सेल्स के साथ, एक ट्यूमर सेल के साथ। नाउ दिस फ्यूजन इज नोन एज दिस द प्रोडक्ट इज नोन एज द हाइब्रिडोमा, ठीक है ना। हाइब्रिडोमा मतलब ओमा जो वर्ड आया हुआ है वो माइलोमा से आया हुआ है और हाइब्रिड है बी सेल से, तो इसलिए इसका हमने नाम रख दिया हाइब्रिडोमा, ठीक है। नाउ अब यहां पर हम स्क्रीनिंग करेंगे कि जो हाइब्रिडोमा बना है उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट ऑफ मैब है कि नहीं है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है कि नहीं है। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट ऑफ मैब होगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्लोन करेंगे और बहुत सारी एंटीबॉडीज बना लेंगे, और बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाने के बाद उसको सेल से हम अलग करके, यानी कि जो ट्यूमर सेल उससे अलग करके एंटीबॉडीज को अलग कर लेंगे और उस एंटीबॉडीज को फिर हम यूज करेंगे फॉर द थेरेपेटिक इम्प्लीकेशन। नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल स्टेप्स, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। फर्स्टली वी ह्यूमनाइज द एनिमल्स, देन वी कैन आइसोलेट द स्प्लीन विच कंसिस्ट ऑफ द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन बी सेल्स, ओके। लेटर ऑन वी फ्यूज द स्प्लीन सेल विद द माइलोमा एंड फॉर दिस पर्पज वी यूज द पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। देन वी कैन अलाउ द अनफ्यूज्ड बी सेल टू डाई। अब जो अनफ्यूज्ड हैं, जो फ्यूज नहीं हुए माइलोमा के साथ, उनको मरने देंगे। ऐसे ही हम माइलोमा जो फ्यूज नहीं हुए उनको भी मरने देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अमीनोप्टेरिन, ठीक है ना। अमीनोप्टेरिन ऐड करने के बाद व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्लोन द रिमेनिंग सेल्स। जो फ्यूज्ड सेल्स हैं उनको हम क्लोन करेंगे और उनको हम अलग अलग वेल्स में डाल देंगे, ठीक है। और वेल्स में डालने के बाद उनको छोड़ देंगे ग्रो होने के लिए। लेटर ऑन वी कैन स्क्रीन द सुपरनेटेंट ऑफ ईच क्लोन for the presence of desired antibody, and once we get it, ठीक है ना, we grows that selective जो कि effective एंटीबॉडी बना हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, कल्चर मीडिया में डेवलप करेंगे और उसके बाद हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज में, ठीक है ना। नाउ अगर हम बात करें तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पर मिलीग्राम एंटीबॉडी बनाने में जो हमको एक्सपेंस आता है दैट इज अराउंड $1000 to $2000, ठीक है, पर मिलीग्राम। तो थोड़ा सा महंगा है ये, ठीक है। इवैल्यूएशन के लिए वी हैव सर्टन गाइडलाइंस फ्रॉम द WHO एज वेल एज द यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, एंड दीज आर द guidelines which is giving the proper method to evaluate the monoclonal antibody, because see, therapeutic implication is a separate part, but still we need to assure that the safety, because किसी भी मेडिसिन में FDA या और रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो सेफ्टी को सबसे प्राइमरी कंसर्न करती हैं, ठीक है ना। प्राइमरी कंसर्न जो है हमारा, एफिकेसी पोटेंसी थोड़ा सा सब मैक्सिमल होगा चलेगा, लेकिन सेफ्टी जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर दैट पर्पज वी हैव सम गाइडलाइंस, ठीक है ना। नाउ दिस इज अ फ्लो चार्ट विच इज डिपिक्टिंग अबाउट द प्रोसेस एंड इवेल्युएशन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एज पर द यूरोपियन एज वेल एज द WHO गाइडलाइन, ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ मोनोक्लोनल। अब कैसे आप कैरेक्टराइज करोगे कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जैसे हम कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको कैरेक्टराइजेशन करते हैं ना, हम चेक करते हैं कि आइदर जो हमने बनाया ये है भी कि नहीं है, ठीक है ना। So for that we have some specific parameters like physicochemical parameters, immunological parameters, biological activities. We can go for the purity, impurity and the contaminants, and later on we quantify, we talk about the quantity or yield of that particular antibody, ठीक है। So starting with the physicochemical properties, as the name indicate, it having a two words, physical as well as the chemical. तो यहाँ पर हम दोनों aspects की बात करेंगे, यानी कि physical और केमिकल कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लास, सब क्लास, लाइट चेन कंपोजिशन एज वेल एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नाउ दीज क्लासेज और सब क्लासेज ऑफ द एंटीबॉडी ना इज वेरी मच डिफाइंड बाय व्हाट, द हैवी चेन, ठीक है ना। जो क्लास डिफाइड होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि IgM, IgG, IgA, IgE और IgD हैं, ठीक है। और वो कौन डिसाइड करेगा, वो जो हैवी चेन है। मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये जो बाहर है दिस इज नोन एज
लाइट चेन और जो अंदर है उसको हम कहते हैं हैवी चेन, और ये दोनों चेन जो हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं. नाउ द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड ऑल्सो रिड्यूस द डीएनए सीक्वेंसिंग एज वेल एज द कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली बाय द various method in which we can talk about the peptide mapping or the spectrometry, especially the mass spectrometry. ठीक है. Now the you can say the position of N and the C terminal, that also be analyzed during the physico chemical characterization of the map. ठीक है. Now what are the immunological properties? So इसमें हम बात करेंगे जनरली क्रॉस रिएक्टिविटी और जो सेफ्टी पैरामीटर्स की है. So here the binding assay of the antibody to the purified antigen and the defined region of the antigen should be performed, where feasible to the we can determine the affinity as well as the avidity, as well as we can check out the cross reactivity, but it means that either it is forming a good combination or forming a bad combination. ठीक है ना. Unintentional reactivity, cytotoxicity for the human tissues distinct from the unintended target should be documented. ठीक है. Parallelly, the epitope and the molecule bearing the relevant epitope should be defined, and this should be include a biochemical identification of these structures such as protein, oligosaccharides, glycoproteins, glycolipids. ठीक है, जो भी इसका नेचर हो. हाँ. And relevant characterization studies such as amino acid sequencing, carbohydrate structure isolation to the extent possible. Okay. So अब यहाँ पर इम्यूनोजेनिसिटी की हम बात करते हैं. इफ इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द म्यूरिन, इट मीन्स हॉर्स. अगर ये हॉर्स से डेराइव्ड हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, इम्यूनोजेनिक होगा, यानी इससे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि एनाफाइलैक्टिक शॉक लगने के चांसेस होंगे. ठीक है. अगर ये 65% मिक्सचर है म्यूरिन का और ह्यूमन का, ठीक है ना, मतलब 65% ह्यूमन और 35% क्या होगा इसमें, हॉर्स का कॉम्बिनेशन होगा, जिसको हम कहेंगे काइमेरिक एंटीबॉडीज. ठीक है. तो यहां पर चांसेस थोड़े से कम होंगे. ठीक है. ह्यूमनाइज्ड जहां पर 90 मोर देन 90%, यानी कि 90% आपका ह्यूमन और 10% म्यूरिन हो, हॉर्स का कॉम्बिनेशन हो, वहां पर ये बहुत ही कम होगा और बिल्कुल फ्री हो जाएगा. कहां, जहां 100% ह्यूमन से ये डिराइव्ड होगा. ठीक है. अब इसका नॉमेनक्लेचर भी यहां देख सकते हैं. अगर वो 100% म्यूरिन से डिराइव्ड है तो उसके लास्ट में नाम के ओमैब आएगा. ठीक है. यानी सफिक्स क्या होगा, ओमैब होगा. अगर वो काइमेरिक कॉम्बिनेशन यानी 65% ह्यूमन और 35% म्यूरिन से है तो उसमें आएगा जीमैब. ठीक है. ध्यान रखिएगा, 90% से ज्यादा है तो जूमैब, और अगर वो 100% है तो यूमैब. ठीक है. तो ये इसका एक सफिक्स है जो आपको थोड़ा सा मतलब फायदा देगा जब आप इसको डिस्टिंग्विश करना चाहोगे. ठीक है. नाउ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली द एक्टिविटी विच इज इंडिकेट द एबिलिटी और द पोटेंशियल ऑफ एनी कंपाउंड टू अचीव द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. ठीक है ना. सो इट शुड बी असेस्ड बाय द इन विट्रो एसे. ठीक है ना. नाउ इन विवो एसेज में हम बात करते हैं कि हमने टिश्यू के साथ सब कुछ करके देख लिया. ठीक है. लेकिन पैरेलली वी कैन ऑल्सो गो फॉर द इन विट्रो. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट इफेक्टर कॉम्बिनेशन विल लीड टू द सेफ्टी एज वेल एज द एफिकेसी इवेल्युएशन. ठीक है. नाउ purity, impurity and the contaminants, it is also the important aspect during the characterization, and the method generally include the determination of the physicochemical properties such as molecular weight of the MAB, extinction size coefficient, extinction coefficient, electrophoretic profile, chromatographic data as well as the spectroscopic profile. Parallelly, the potential process related impurities like the SCP, host cell DNA, cell culture residue, downstream processing residue, ठीक है ना, it should be identified and evaluated quantitatively and qualitatively using the what chromatographic techniques. Now अब contaminants के लिए हम क्या करेंगे, जो impurities हैं उनके लिए क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे जो टेस्ट हैं जिसमें कि हम माइक्रोब्स का इवेल्युएशन करेंगे, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आइदर इट इज एक्सोटॉक्सिन और द एंडोटॉक्सिन, उनका एस्टिमेशन करेंगे कि उसके अंदर है तो नहीं, और अगर होगा तो उसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, उसको रिमूव करना है. नाउ द पोटेंसी इज द क्वांटिटेटिव मेजर and it is used for the estimation of the biological activity of the any molecule or any product. ठीक है ना. So it attribute to the what the product which is linked to the relevant biological property. Relevant potency assay should be a part of the specification
for drug substance or the drug product and should be ideally reflect the biological activity and the clinical situations. Now जब हम बात करते हैं पोटेंसी एंटीबॉडीज़ की, तो इसका मतलब ही है कि ये उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, उसका एसए में कितना परसेंटेज आ रहा है उसको डिफाइन करता है, और ये डिफाइन करता है कि ये कितने हद तक अपने थेरेपेटिक इम्प्लीकेशन को जस्टिफाई कर दे रहा है। ठीक है, सो वेयर मैब आर मेजरली यूज्ड, ठीक है, कहाँ पर मेजरली ये यूज्ड होते हैं, तो ये 3 कैटेगरीज में बड़ी बड़ी जगह यूज होते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे डायग्नोसिस के पर्पस के लिए, थेरेपेटिक पर्पस के लिए, या फिर प्रोटीन पर्पस के लिए। डायग्नोसिस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बायोकेमिकल एनालिसिस और डायग्नोस्टिक इमेजिंग की बात करेंगे। थेरेपेटिक में हम बात करेंगे कि क्या हम मैप को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज ए थेरेपेटिक एजेंट, या फिर मैप को हम एज ए टारगेट एजेंट यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज द प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। सो बायोकेमिकल एस्टिमेशन में अगर हम बात करें तो जनरली हम इसको रेडियो इम्यूनो एसे या फिर एलाइजा के पर्पस के लिए यूज करते हैं लैब में। एंड दीज एसेस मेजर्स द सर्कुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन लाइक इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और द थायराइड हार्मोन। नाउ the specific implication is that the identification or detection of the human chorionic gonadotropin hormone, which is a hormone which is secreted during the pregnancy, first week or second week of the pregnancy। उस टाइम पे इसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। पैरेलली हार्मोनल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे थायराइड या फिर ग्रोथ हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है, या फिर कैंसर के एस्टिमेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, स्पेशली कोलोरेक्टल या फिर प्रोस्टेट कैंसर में। ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए अगर हम बात करें तो मैब आर यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक इमेजिंग ऑफ डिजीज। लाइक व्हाट वी कैन डू, वी कैन टैग द मैप विद द आइसोटोप। ठीक है, और इसके लिए हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आयोडीन 131 एंड टेक्नीशियम 99। ठीक है, इसमें टैगिंग करने के बाद हम उसको बॉडी में डालते हैं, और फिर मैप कैन लोकलाइज द स्पेसिफिक साइट विच इज़ डिटेक्टेड बाय द इमेजिंग ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। अब ये ट्यूमर में हम ज़्यादा कॉमनली इसको अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट यूज ऑफ मैप की अगर हम बात करें तो जनरली इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, लाइक इट कैन प्रमोट द एफिशिएंट ओपोसोनाइजेशन का मतलब होता है फैगोसाइटोसिस को सपोर्ट करना। ठीक है ना, तो ओपोसोनाइजेशन में ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इम्यूनोसप्रेशन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी ये हेल्प करता है। बेसिकली जहाँ पर आपका इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग आप यूज़ कर रहे हो किसके लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन को बचाने के लिए, तो वहाँ पर ये मैप जो है वो बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, नाउ इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर दे आर वेरी गुड अगेंस्ट द एंटीजन विच कैन कॉज द कैंसर। ठीक है, और ये बेसिकली उन कैंसर सेल से बाइंडिंग करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है मल्टीपल पाथवेज के थ्रू, जो कि यहाँ पर डायग्राम में डिपिक्ट हो रहे हैं। एड्स के ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी क्योंकि इम्यूनिटी क्या हुई है हमारी, कंप्रोमाइज़ होती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो एफसी फ्रेगमेंट है वो क्या करता है, सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन कर देता है किसका, HIV वायरस का, जिसकी वजह से एड्स का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। अब मैप को हम टारगेट की तरह कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्पेशली हम ड्रग के साथ इसको कपल कर देंगे, पर्टिकुलर कोई ड्रग के साथ कपल करके, और फिर इसको हम छोड़ देते हैं स्पेशली कहाँ पर, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज है और वहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया प्रो ड्रग को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से ये यूज़ किया जाता है फाइब्रिन या प्लाज्मिन के रूप में भी, जहाँ पर हम इसको मेजर, क्योंकि फाइब्रिन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड क्लॉट। ठीक है, एंड इट इज़ डिजॉल्व बाय द व्हाट, द प्लाज्मिन। ठीक है ना, तो जनरली द प्लाज्मिन विल फॉर्म द एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, और इस एक्टिवेटिंग फैक्टर के को भी हम यूज़ करते हैं एज ए थेरेपेटिक पर्पस। नाउ ड्रग डिलीवरी थ्रू लाइपोसोम्स में भी हम मैप को यूज़ करते हैं, जहाँ पर लाइपोसोम्स या फिर माइक्रोसोम्स या फिर नैनो टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ करके, नैनोसोम्स को यूज़ करके हम ये जो ड्रग है उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है, नाउ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, व्हाट इज़ इट, तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन इज़ द आइसोलेशन और यू कैन से द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम मैप यूज़ करते हैं, we can use the columns can be prepared by the coupling them to the cyanogen bromide, ठीक है ना, which is activated by the saffrose chromatographic matrix। ठीक है ना, the immobilized map in the manner are very useful for the purification of PRET। अब आपको जो प्रोटीन हमारा इंटरेस्ट का है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ what are, now this is the chart or you can say the bar histogram। ठीक, सॉरी हिस्टोग्राम, इसको तो हम बार डायग्राम ही कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिपिक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर, तो अगर हम ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैप का वो होता है थ्रू द
एंटागोनाइजिंग द पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये इंटरन्यूक्लिन इनहिबिटर की तरह काम करता है, या फिर CD डायरेक्टेड एंटीबॉडीज की तरह काम करता है, या फिर कभी कभी ये TNF अल्फा को भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, रेस्ट ये FC फ्यूजन प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकता है, या फिर ग्रोथ फैक्टर के साथ भी, या फिर VEGF के साथ भी बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देता है। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो है इसका होता है कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में। आप देख सकते हैं 43% ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, 36% कैंसर है, एंड द रेस्ट इज यूज फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन और द अदर कंडीशंस। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्टन मैप विच इज अप्रूव्ड बाय द FDA। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉमन नेम्स हैं उनके, जो ब्रांड नेम्स हैं यहाँ पर, what are the targets by which they exhibit their therapeutic potential, एंड कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो एडलिमुवैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, डेक्लिजुमैब भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जो कि यूज़ किए जाते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर और अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में। दीज आर द रेफरेंसेस फॉर द डिटेल्ड स्टडी। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।